તમે કહેતા હતા કે ઉચ્ચારો પણ તમે ખૂબ શુદ્ધ ઉચ્ચારોથી આખી વાત રજૂ કરી છે. અને એક બીજી પણ પૂરક માહિતી આપું કે પશ્ચિમમાં મેકિયાવેલી એક મોટા એ થઈ ગયા છે, એમનું પ્રિન્સ નામનું પુસ્તક છે. ઘણીવાર અર્થશાસ્ત્રને પ્રિન્સ સાથે સરખાવવામાં આવે છે, પણ અર્થશાસ્ત્ર ઇઝ લોટ મોર કોમ્પ્રિહેન્સિવ એવા પ્રકારનું પુસ્તક છે. અને અનુવાદ વિશે પણ એમણે ઘણી સુદર્શનભાઈએ છણાવટ કરી. ઉમાશંકરે પણ આ ટાંક્યું છે અને બહુ પ્રચલિત ઉક્તિ છે, એટલે હું માનું છું કે અહીંયા સુસંગત છે અનુવાદ વિશે. કે અનુવાદ ઉમાશંકર પણ કહે છે અને અંગ્રેજીમાં આ ઉક્તિ છે. હું એનું ગુજરાતી આપું છું કે અનુવાદ છે પત્ની જેવો છે. જા સાહેબ, અનુવાદ એ પત્ની જેવો છે કે જો સુંદર હોય તો વફાદાર ન હોય અને વફાદાર હોય તો સુંદર ન હોય. એટલે આવા પ્રકારનું છે. અને બીજું, અર્થશાસ્ત્રનો આપણો જે આખો જે સેશનનો થીમ છે સત્રનો, વિજ્ઞાન, ગૌતમભાઈ, વિજ્ઞાન, અર્થશાસ્ત્રનું જે કંઈ અંગ્રેજી થયું છે એમાં સાયન્સ ઓફ પોલિટી છે. અર્થશાસ્ત્ર, અર્થ ઇઝ નોટ ઇકોનોમિક્સ. અર્થ ઇઝ, અહીંયા જે અર્થશાસ્ત્રમાં અર્થ છે એ સાયન્સ ઓફ પોલિટી છે. પોલિટી એટલે પોલિટિકલ સાયન્સ. એટલે જો વિજ્ઞાન આવ્યું ને, અર્થશાસ્ત્ર એટલે વિજ્ઞાન છે. એટલે અર્થના અનેક અર્થો છે. ઋષિનામ પુનરાદ્યાનામ વાચમ અર્થોનું ધાવતી, એમાં અર્થનો અર્થ જુદો છે. લૌકિકાનામી સાધુનામ અર્થમ વાક અનુવર્તતે, એમાં અર્થ જુદો છે. હા, અને વિદ્યામ અર્થમ ચ ચિંતયેત, એમ જ્યારે કહ્યું કે જ્યારે વિદ્યા છેલ્લા સુધી અજરા અમરવત પ્રાજ્ઞો, માણસ ડાયો પુરુષ હોય, અજર અને અમર હોય, એમ એણે વિદ્યા અને અર્થનો વિચાર કરવો કે જાણે કદી એને મરવાનું જ નથી, અજર છે, એમ એણે વિદ્યા અને અર્થનો વિચાર કરવો. એમાં અર્થ જુદો છે. એટલે ગુજરાતીના એક મોટા સરસ વિવેચક સુમનભાઈ છે, એમણે અર્થઘટન શાસ્ત્ર વિશે પુસ્તક પણ લખ્યું છે, અર્થનો શું અર્થ થાય. એટલે એ રીતે આજે ખૂબ સુંદર વક્તવ્ય આપણને સુદર્શનભાઈ પાસેથી મળ્યું. હવે હું જે ત્રીજા વક્તા છે આ બેઠકના, એમને હું વિનંતી કરીશ. આપણે બધા એમના અવાજથી તો ચીર પરિચિત છીએ. એ દૂરદર્શન પર એ પોતે સમાચાર વાંચનારા છે. એમ વાર્તા ઇતિ વાર્તા, એમ તમારામાંથી ઘણા બધાએ એમનો આ વાક્ય સાંભળ્યું હશે, બલદેવાનંદ સાગરનું. અને બલદેવાનંદ સાગર, એમણે, મને ખબર નથી, મને સાહેબ તમારા વિશે થોડું કુતૂહલ રહે છે કે તમે આ મૂળથી જ આવું નામ છે કે તમે ત્યાં જઈને હિન્દી ભાષી ગણાઈ જવા માટે આવું નામ બનાવ્યું છે? બલદેવાનંદ સાગર, કારણ કે આમ છે ગુજરાતી, મૂળ ગુજરાતના છે, અને બલદેવાનંદ સાગર એમ તો એ આપણને હિન્દી નામ લાગે. તો એ બલદેવાનંદ સાગર, અને સાહેબ હરીશભાઈએ કહ્યું તે પ્રમાણે આ વર્ષે એમને રાષ્ટ્રપતિ પુરસ્કાર મળે છે. એટલે એ પણ એક બહુ સરસ વાત થઈ છે એમના વિશે. પોતે પત્રકાર છે, સમાચારો વાંચે છે અને સાથે સાથે પત્રકાર છે. વક્તા તો ખૂબ સરસ છે, અવાજ સરસ છે. આ પહેલાં પણ સંસ્કૃત સત્રમાં એકવાર આવી ગયા છે, તો આપણે અવાજથી સાંભળ્યા છે. હવે એમને રૂબરૂ પણ સાંભળીએ. હું બલદેવાનંદ ભાઈને વિનંતી કરું કે તેઓ આવે અને એમનું વક્તવ્ય રજૂ કરે. ગુજરાતીકરણ કરું. વિશ્વં દર્પણ દૃશ્યમાન નગરી તુલ્યં નિજાંતર્ગતં પશ્યન્નાત્મનિ માયયા બહિરિવોદ્ભૂतं યથા નિદ્રયા યહ સાક્ષાત કુરુતે પ્રબોધ સમયે સ્વાત્માનમેવાદ્વયં તસ્મૈ શ્રી ગુરુમૂર્તયે નમઃ. ઇદં
श्रीदक्षिणामूर्तये सदाशिवसमारब्धां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषामपि संस्कृतानुरागिणां संस्कृतविदुषाम् अत्र पवित्रे अस्मिन् कैलास गुरुकुल आश्रमे शुभे अस्मिन् स्थाने महुवास्थले परमादरणीयानां रामकथा गायकानाम् आचार्याणां मुरारी बापू वर्याणां सान्निध्ये। बापू प्रणाम करूँ, जय सीताराम। मम सौभाग्यम, मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरुओं की कृपा से, गुरु परंपरा है, डॉक्टर साहब, पंड्या साहब, यहाँ माधवानंद आश्रम जिसमें माधवानंद जी महाराज जी हुए हैं, कोई 250 साल हो गए हैं, उस परंपरा में शांकर परंपरा है। शिवोहम सागर जी महाराज मेरे गुरु है, उसमें शास्त्री जी महाराज, नित्यानंद जी महाराज, ब्रह्मानंद जी महाराज, चिदानंद जी महाराज, बहुत अच्छे संस्कृत के विद्वान और बहुत तपस्वी, उनका पूरा इतिहास है और नेट पर भी है। तो उस गुरु परंपरा में मैं दीक्षित हूँ। चमारडी में पढ़ा हूँ 5 तक, फिर 6ठी 7वीं वल्लभीपुर में मैंने की है, और फिर गुरुजी से दीक्षा लेके मैंने कहा कि मैं संस्कृत पढ़ने जाऊँगा, मैं संस्कृत पढ़ूँगा। ये संक्षिप्त रूप में आप आत्म परिचय आपको दे रहा हूँ। और मेरा नाम बलदेवानंद सागर उपनयन संस्कार के बाद दिया गया और बनारस में मैं पढ़ा हूँ, ये मेरा परिचय है, इसलिए मैं बलदेवानंद सागर हूँ। मुझे पाणिनि और भाषा विज्ञान पर कहना है। यहाँ इस सभागार में बहुत सारे विद्वान बैठे हुए हैं। व्याकरण के आचार्य अर्कनाथ चौधरी जी हैं, गौतम भाई पटेल हैं और दूसरे भी विद्वान सारे हैं। लेकिन अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए, और मुझे सौभाग्य मिला है कि काशी में पढ़ा, दिल्ली में मुझे कार्य मेरा क्षेत्र हुआ, आकाशवाणी में तब समाचार शुरू हुए, उसके लिए मेरा चयन हुआ। और आरंभ में हमें किन किन बातों के लिए किस किस तरह से अनुवाद करना पड़ता था, जैसे अभी आपने कहा अयंगार साहब ने कि कौटिल्य अर्थशास्त्र की बात जब वो कर रहे थे, तो मुझे तब ये अनुभव हो रहा था कि मैं आकाशवाणी के वो अपने संस्कृत एकांश में बैठा हूँ और समाचार ट्रांसलेट कर रहा हूँ अंग्रेजी से संस्कृत में, क्योंकि हमें नए नए शब्द कौटिल्य अर्थशास्त्र से मिलते थे, या उत्कोच हो, पण हो, दूसरे दूसरे शब्द, क्योंकि चुंगी नाका पर कितना देना ये भी अर्थशास्त्र में है, कौटिल्य अर्थशास्त्र में। फिर यज्ञ की बात कर रहे थे मेहता साहब, तो उन्होंने ध्वनि विज्ञान की बात कही। तो संस्कृत व्याकरण है ही ध्वनि विज्ञान। बापू, मैं उस बात को आपके सामने रखूंगा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन अनुभव के आधार पर और जितना गुरु कृपा से मेरे पास है, मैं हृदय खोल के आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले ये श्लोकार्धेन कथयामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः, आपने कहा। ये आचार्य शंकर भगवान भाष्यकार तो कह सकते हैं, लेकिन मुझे कहना है केवल कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने प्रथम श्लोक में जो बात कही है वो मेरा वक्तव्य है। केवल मैं एक इसी श्लोक के आधार पर पाणिनि क्या है और भाषा विज्ञान क्या है वो मैं कह सकता हूं। इस मंगलाचरण श्लोक में उन्होंने वाणी की बात की, वर्ण की बात की, विनायक की बात की। यही मेरा विषय है। बापू जब कथा कहते हैं तो वो वर्ण का मतलब मानव सब, क्योंकि वर्ण शब्द के अनेक अर्थ है। उसमें वर्ण अक्षरों को, वर्णमाला को भी वर्ण कहते हैं। वाणी भाषा, भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति, बोली, उस पर मैं आऊँगा, अभी थोड़ा विस्तार से कहूँगा। और विनायक, विनायक लिपि के आचार्य है। अथर्व शीर्ष में विनायक के बारे में इतना सारा कुछ
तो हमारे यहाँ लिपि के बारे में यहाँ हमारे प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी बैठे हैं, अभी वो तैयारी कर रहे हैं एक बहुत बड़े ग्रंथ की जिसमें भाषा, लिपि और इसके बारे में विस्तार से दिया जाएगा। तो लिपि का पूरा विज्ञान है हमारे यहाँ। तो विनायक उसके आचार्य है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये सारे विषय को लेकर अपने वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको, इस श्लोक में पूरा विषय मेरा आ जाता है। महामुनि पाणिनि जी के पिता का नाम पणिन है, माता का नाम दाक्षी है, गुरु का नाम उपवर्ष है। और अफगानिस्तान के रहने वाले, ऐसे बनारस में मैंने कई विद्वानों से सुना था, लेकिन बाद में जब अध्ययन किया तो पता चला कि गांधार के हैं, शलातुर उनका शलातुरिया नाम भी महाभाष्य में है। आचार्य अर्कनाथ चौधरी जी से भी कल बात हो रही थी, साथ में जब आ रहे थे तो गौतम भाई से भी चर्चा कर रहे थे। और शलातुरिया ऐसे महाभाष्यकार पतंजलि ने भी उनके बारे में उल्लेख किया है। उपवर्ष उनके गुरु है और उन्होंने जो रचना की अष्टाध्यायी की, 8 अध्याय, प्रत्येक अध्याय के 4 पाद, तकरीबन 4000 सूत्र। लेकिन उनके पूर्व बहुत सारे आचार्य थे, बहुत सारे व्याकरण थे, जिसको मैं आपके सामने केवल उल्लेख मात्र कर दूं। माहेश्वर सूत्र के बारे में, जिसके आधार पर उन्होंने पाणिनि व्याकरण की रचना की है, अष्टाध्यायी की रचना। आकाशवाणी में जब हमने कार्य शुरू किया तदा अस्माभिः अनुभूतम यत् केन प्रकारेण सरलतया वयम यत्किमपि जीवने घटते व्यावहारिक जीवने तत् सरलतया संस्कृत भाषयापि संप्रेषयितुं शक्नुमः। केवी रीते अमे जे हिंदीમાં, અંગ્રેજીમાં, ગુજરાતીમાં, કોઈ પણ ભાષામાં જે અધુનાતન વિચારો સંપ્રેષિત થઈ રહ્યા છે મીડિયાથી, એને સંસ્કૃતમાં કેવી રીતે કરી શકીએ? कारण कि संस्कृत प्राचीन भाषा है, इतने साल पुरानी है, इसमें नहीं हो सकता, या सिर्फ कर्मकांड है। ये जो भ्रांतियाँ थी उसको, उसके प्रतिरोध के लिए हमारे सामने एक चैलेंज था। तो उस चैलेंज को करने के लिए सरल भाषा में हमने प्रयास किया और नए नए शब्दों का निर्माण करते गए। आगे मैं आपको कहूँगा कि किस तरह से 2000 धातुएं, 200 प्रत्यय सफिक्स, 2000 धातु वर्ब्स और 22 उपसर्ग, उसके द्वारा कितने सारे शब्द हो सकते, कितनी बड़ी निर्माणी है ये फैक्ट्री है संस्कृत, जो ध्वनि के द्वारा शब्द को बनाना, उसके लिए संस्कृत हमको सहायक होती है। मैं प्रयास करता हूं आपके सामने उसको बताने का। आजकल हम लोग अंतर्जाल, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, मोबाइल में भी, लैपटॉप में भी, सभी जगह। और www. करके हम इसका प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है विश्वव्यापी जाल, वर्ल्ड वाइड वेब, विश्वव्यापी जाल। पूरा संसार इस विश्वव्यापी जाल में आपने समावृत कर लिया। यहाँ मैं बैठा बैठा मैं बोल रहा हूँ, अनेक जगह पर, कोई भौगोलिक सीमा नहीं, कोई किसी पर तरह का कोई बंधन नहीं, सभी लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये अंतर्जाल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव है। लेकिन ये जाल आज हम इस तरह से पहचान रहे हैं जो हजारों साल पुराना है। किस प्रकार से? तो इसको, ये भौतिक विज्ञान द्वारा निर्मित जाल भारत के सदियों पुराने जाल का अनुकरण मात्र है। आपके सामने प्रमाण ये है। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धरतु कामः सनकादि सिद्धान एतद् विमर्शे शिवसूत्र जालम। ये शिवसूत्र जाल है। ये देखिए, आई उन रिलरिक ए ओंग आई औच हयवरट लन यमगणनम जभई, सब हम संस्कृत जो आरंभ करते हैं वो पढ़ते हैं। और ये सूत्र के बारे में मुझे इतना ही, प्रथमा परीक्षा पास की तब इतना ही पता था। महाभाष्य थोड़ा बहुत पढ़ा, सिद्धांत कौमुदी पढ़ी। लेकिन अब जब इसकी तैयारी कर रहा था बापू, तो मैंने नंदिकेश्वर के 27 कारिकाएं मुझे मिल गई और मुझे नेट पर ही मिली, और वो मेरे पास है। मैं यहाँ समयाभाव के कारण, लेकिन नंदिकेश्वर जिनका ये श्लोक है, उन्होंने अयि उण इसका क्या अर्थ है 2-2 कारिकाओं में बताया। रिलरिक
इसका माने वर्ण का तो उन्होंने कहा, अर्थ किया ही किया, लेकिन अद्वैत शैव अद्वैत सिद्धांत को भी उन्होंने प्रतिपादित किया। विद्वान लोग जानते हैं इस बात को, चौधरी साहब। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि किस प्रकार से हमारा जो आधुनिक विज्ञान है, जो ध्वनि पर काम करता है, उसको हमारे ऋषियों ने चिंतन के द्वारा और देख कर, ऋषयः मंत्र दृष्टा रहा, आपने जैसे मेहता साहब कहा, उन्होंने ध्वनि को देखा, सुना नहीं, देखा, आत्म साक्षात्कार किया। और उसके बाद जो मंत्र ऋषयः मंत्र दृष्टा रहा, जैसे हम कहते हैं, तो इस तरह से इन ध्वनियों को किस तरह से आगे चल के हम शब्द बनाते हैं, पद बनाते हैं। पहले पद वर्ड जिसको हम कहते हैं, फिर वाक्य, और उसके बाद फिर गद्य, गद्यांश, पद्य, पद्यांश, ये सारा विस्तार साहित्य का होता है। आइए उन रील केवल संक्षेप में मैं बता दूं, जो जानते हैं, इसका प्रत्याहार बनता है, जैसे मैंने कलर बदल दिया, अ से अणा तक ये प्रत्याहार बनेगा, अण प्रत्याहार कह दिया। और यही सिस्टम कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में भी है कि किस तरह से समाहार के द्वारा हम संप्रेषित संदेश को ध्वनि और अक्षर, टेक्स्ट के मैसेज के माध्यम से करते हैं। अण किया तो अई उ का बोध हो जाएगा, अच किया तो चारों सूत्रों का बोध हो जाएगा। वो मैंने नीचे केवल संक्षेप में दे दिया है। और इसी तरह से ये 10 सूत्र है जिसमें व्यंजन है, हल किया तो सबका सब। तो ये एक जो 14 सूत्र को आधार मानकर महामुनि पाणि जी ने व्याकरण की अष्टाध्यायी की रचना की है, ये ध्वनि विज्ञान है, जिसका उन्होंने आज के ध्वनि वैज्ञानिक, जिसको आप टेक्नोक्रेट, साउंड टेक्नोक्रेट कहते हैं, वो इसका आधार ले रहे हैं। ओपी पांडे जी जो नासा के हमारे विजिटिंग प्रोफेसर है, वो जानते हैं कि वहां विज्ञान मानकर संस्कृत व्याकरण को किस तरह से कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका प्रयोग करने जा रहे हैं। जी, मैं एक उदाहरण दूं गौतम भाई। आज से कोई 10 या 15 साल पहले एक कार्यक्रम हुआ जिसको आस्था और संस्कार में प्रसारित हुआ, संरक्षण योग नाम था। 75 एपिसोड बने थे और हमारी लीना महेंद्रे जी, सुख्यात IAS ऑफिसर, उनके पिता बहुत बड़े विद्वान हैं, वो स्वयं संस्कृतज्ञ है, और वो अध्यक्षा थी जब एक कॉरपोरेट ऑफिस की। तो ये प्रोग्राम किया बापू। इसमें क्या किया उन्होंने, संरक्षण माने गीता लिया, और उसके बाद कैसे हमको पेट्रोल बचाना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, जल बचाना चाहिए, बिजली बचाना चाहिए, रिसोर्सेज, मानवीय संसाधन को बचा, इसलिए संरक्षण शब्द लिया। गीता साथ में पाठ, और उसके बाद बच्चों को इन्वॉल्व किया, कॉलेज और स्कूल के, उनसे कुछ नाटिकाएं करवाई कि हमको, और रेड लाइट पे जो रिवर्स काउंटिंग है 30, 29, 28 इस तरह की, वो भी उन्हीं का काम है। तो इस तरह से उन्होंने संरक्षण योग बना के अपने पिताजी जो अग्निहोत्री जी थे, उनके श्रीमुख से, उनकी वाणी से पाठ करवाया। और उसके बाद जब प्रोग्राम बना, 7-8 महीने हो गए, तो उस बीच पिताजी का स्वर्गवास हो गया। और एडिटिंग अब हमको करनी थी, तो उन श्लोकों में कहीं एक जगह ग या य उच्चारण में त्रुटि थी, वो तो थे नहीं। अब हम उसको एडिट करने जब बैठे एडिटर के साथ, साउंड एडिटर के साथ, तो उस ग को, ध्वनि को लाने के लिए प्रयास किया कि कहीं और ऐसी ध्वनि है, तो उसको ग की जगह ले आया, य की जगह। तो ढूंढते ढूंढते मिली तो सही, लेकिन वो आगे पीछे हो जाए, माने जो य से पहला वर्ण है या बाद का वर्ण है वो गड़बड़ हो जाए। तब मैंने उनको कहा, कोई 2-2.5 घंटे की मेहनत के बाद, कि ये जो यहां य है, उसके पहले वाला वर्ण और बाद वाला वर्ण, ऐसी कोई साउंड है, उसको आप वहां से कॉपी कीजिए और यहां पेस्ट कीजिए, और वो ठीक हो गया। तो ये ध्वनि विज्ञान जो है हमारा, ये कंप्यूटर साइंस जो हमारी सूचना प्रविधि है, वो प्रूव कर रहा है कि किस प्रकार का ये उपयोगी है, और किस तरह से ये ध्वनि विज्ञान को उन्होंने इन सूत्रों में बांध के हमें ये दर्शन दिया है। माहेश्वर सूत्राणी, अब नेट पर बहुत सारी साइट्स है जहां जाके अष्टाध्यायी के सूत्र सुन भी सकते हैं और उनकी व्याख्या देख सकते हैं। एक साइट का मैंने नाम दे दिया है माहेश्वर सूत्राणी। ये पूरी नंबर साइट है, आप गूगल पर जाके इसको लिखेंगे, पूरी अष्टाध्यायी आपको मिलेगी। और ये बहुत सारे लोग, इस समर्पित लोग भारत में, विदेश में इस पे काम कर रहे हैं। कुछ मूल भारतीय हैं, कुछ विदेशी लोग हैं। संस्कृत धातुओं के बारे में ये साइट है, sites google.com, इस तरह से वहां आप जाएं, सभी धातु 2000 धातु है, इसके रूप,
किस प्रकार से आत्मनेपदी परस्मैपदी विस्तार सारा दिया हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अब व्याकरण के लिए, जैसे आपका विषय था एंगर साहब, तो व्याकरण तो विशाल है। इसका उद्देश्य क्या है संक्षेप में मैं बता दूं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये षडंग है, 6 अंग है वेद के। क्योंकि व्याकरण का लक्ष्य है वेद की रक्षा करना। जैसे अभी हमने वेद पाठ सुना, तो वेद में एक कल्पना की वेद पुरुष की, उसका व्याकरणम मुखम स्मृतम, व्याकरण मुख है वेद का, तो इसलिए उसको शुद्ध होना जरूरी है। और जैसे हमने अभी चारों वेदों का पाठ सुना, घन पाठ भी सुना हमने, तो जो घन पाठ जटा पाठ वो प्रकार है। तो इस आधार पर मैं अनुभव के आधार पर कहता हूं कि आधुनिक विज्ञान इतना उन्नत है, जिसके माध्यम से यहां बैठे हुए या बापू की कहीं भी कथा होती है उसी समय हम यूट्यूब से रात को सुन लेते हैं या उसी समय लाइव सुनते हैं। तो ये सुविधा तो हुई है, लेकिन ये अभी अपूर्ण है। क्यों? कि हमारे ऋषियों ने जो साउंड टेक्नोलॉजी, जो ध्वनि विज्ञान खोजा, उसमें उन्होंने वेदों के मंत्रों का जिस तरह से पाठ की पद्धति, साउंड टेक्नोलॉजी माने गणानंत्वा गणपति, या जिस तरह से सामवेद का पाठ या घन पाठ हम सुन रहे थे, उसमें वो आज से जितने भी 1000 वर्ष पहले थे, भारत के किसी भी नदी के तट पर या पर्वत में या जिस जगह पर वो पढ़ाए जाते थे और पढ़ते थे, वो आज भी यथावत वैसे ही है। लेकिन आज के हमारे आधुनिक उपकरण, पेन ड्राइव, सीडी या कंप्यूटर, इसमें वायरस आ जाता है। वो वायरस विकृति है, हमारे इन वेद पाठ के मंत्रों में विकृति नहीं है आज भी। ये टेक्नोलॉजी बापू मतलब जो है, तो केवल कहने मात्र से मतलब संस्कृत का बहुत गौरव बताया जाता, लेकिन अनुभव सिद्ध ये बात हो रही है कि ये जो विज्ञान है वो आज के विज्ञानियों को, अभी पांडे साहब भी बताएंगे कि किस प्रकार से ध्वनियों के बारे में हमारे यहाँ काम हुआ है और आज के वैज्ञानिक कर रहे हैं। आपने जैसे मीमांसा के बारे में कहा, यज्ञ के बारे में कहा, और प्रतिदिन जिस तरह से ऊर्जा की जरूरत है, तो हम जितना विज्ञान के द्वारा अनुभव करेंगे हमको समझ में आएगा कि कितना जरूरी है ये। केवल बिना सोचे या कहा है इसलिए, क्योंकि आज की जनरेशन है बिना आर्गुमेंट के या बिना कन्विंस हुए वो मानती नहीं है। लेकिन ये वैज्ञानिक पद्धति से हम सिद्ध कर सकते हैं कि पूरा विज्ञान यहां समाहित है। प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरण, महाभाष्य में भी ये बात कही है, मैंने आपके सामने रखा। ऋग्वेद में व्याकरण के बारे में एक मंत्र मिलता है, केवल विद्वानों के विनोद और परितोष के लिए। चत्वारि श्रृंगास्त्रयो अस्य पादाः द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य। जी, तो ये मंत्र मैंने इसलिए कहा कि आधुनिक भाषा वैज्ञानिक, उनका भी मैंने थोड़ा सा आपको जो लिख के दिया उसमें तो विस्तार से दिया है, इसमें थोड़ा सा मैंने संदर्भ दिया है कि वो कोई 200 पौने 200 वर्षों से भाषा विज्ञान के बारे में कहते हैं, जिसको फिलोलॉजी या फोनेटिक्स कहते हैं पांडे साहब। लेकिन हमारे यहाँ ऋग्वेद या उससे पहले हम कहें, क्योंकि हमारे यहाँ इतिहास आता है जिसमें कहा गया है मैंने इतिहास दिया है, मैं आपको बताऊंगा, पहले इस प्रकरण को मैं पूरा कर लूं। अर्थात इस वृषभ रूपी व्याकरण के 4 सिंह, वो नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, इसमें जो उपसर्ग आया इसीलिए मैंने आके प्रकरण को बदल दिया। और भूत, वर्तमान, भविष्य 3 पाद और 2 सिर, सुप और तिंग। सुप, सुओ, जस, अमोर, छछ, इस तरह जो सूत्र है जिसे रामा रामो रामा, बालकः बालको बालका, 7 विभक्ति और रूप चलता है। और तिंग, टिप्तस जी, सिप्थस्थ, मिवस्मस्ताताम ज थासा थाम, इस तरह से भवती भवता भवंती, पठती पठता, ये रूप सारे हैं। तो ये वैदिक संदर्भ के अनुसार ये व्याकरण पहले से ये साउंड टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास व्यवस्था थी। केवल पाणिनि जी ने उसमें जो नई नई चीजें जोड़ी है और प्राचीन अपने व्याकरणाचार्यों को उसके साथ अपने लेके एक समन्वय किया, इसलिए बहुत लोकप्रिय हुआ है। उपसर्ग की बात है जिसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये कहूं, विद्वान लोग जानते ही है कि वैदिक व्याकरण और लौकिक, माने वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, ये 2 भेद किए। वैसे भेद नहीं है लेकिन टेक्निकल भेद है
क्योंकि जिस तरह से हम मंत्र बोलते हैं तो उपसर्ग अलग होते हैं या विभक्तियों में थोड़ा अंतर होता है, तो ये व्याकरण का शुद्ध शास्त्रीय विषय है। तो इसमें जो उपसर्ग है 22 प्र परा अपसम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंग नी अधि अपियत सु उत अभि प्रति परियुक्त, वो मैं आपको कहूँगा। उसका संदर्भ आदि काव्य वाल्मीकि रामायण में हमको सबसे पहले राम लक्ष्मण को जब हनुमान जी उनके पास प्रथम परिचय होता है तो ये श्लोक बोलते हैं, नूनम व्याकरणम कृष्ण मनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहरतानेन किंचित न किंचित अपशब्दितम। बहुत बोला है हनुमान जी ने, लेकिन कुछ भी अपशब्द नहीं बोला है, संस्कृत वाणी बोली है, शुद्ध वाणी बोली है। માતૃભાષા બોલવામાં આપણે લિબર્ટી લઈએ છીએ, परंतु જ્યારે संस्कृत बोलવું હોય वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। सर आपने जैसे कहा, आप तो बहुत अच्छी संस्कृत बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने कहा संस्कृत वालों से डर लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। नेवम नेदम इदम अस्ति। योगनी जैम, योगाचरण करने वाला व्यक्ति जैसे कमर सीधी करके बैठता और जैसे संगीतज्ञ शास्त्रीय गायन बैठने वाला अपना रीढ़ की हड्डी थी, संस्कृत संभाषणे भी जनेन सावधानम भवितव्यम, अन्यथा तत्र अपशब्दः उतवा त्रुटि ही संभाव्यते, अतएव संस्कृतम इदम। एवं लौकिक व्याकरण के प्रमुख आचार्य पाणिनि, अष्टाध्यायी, ये मैंने आपको कह ही दिया। उसके बाद कात्यायन मुनि ने, आप जानते हैं, उस पर वार्तिक लिखे हैं जिसकी संख्या भी 4000 है। पतंजलि जी ने वार्तिकों पर महाभाष्य लिखा है। इन तीनों को मुनित्रयम कहते हैं, इसलिए इस व्याकरण को मुनित्रय व्याकरण कहते हैं। नाम आख्यात उपसर्ग में ये 22 उपसर्ग है जिसको प्रीफिक्स कहते हैं। और प्रीफिक्स आप तो जानते ही हैं, आप भाषा शास्त्री, सभी भाषाओं में, अंग्रेजी में है अंडरस्टैंडिंग, मिसअंडरस्टैंडिंग, इस तरह से। तो गुजराती में भी इसी तरह से, गुजराती तो खैर जितनी भी लौकिक भाषाएं हैं वो संस्कृत से प्रभावित है, वो भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उपसर्ग 22 है, धातु वह 2000 है, प्रत्यय सफिक्स 200 है, तो 2200 4,40,000, और 4,40,000 को हम 200 प्रत्यय से अगर हम 22 उपसर्ग से मल्टीप्लाई करते हैं, 96,80,000 शब्द तो वैसे ही तैयार है। संस्कृत में अनंत शब्द राशि है, फिर उसके और जोड़ते जाएंगे तो और शब्द है। तो इसलिए संस्कृत में हम जो मेट्रो कार्ड है, स्मार्ट कार्ड बोलते हैं, दिल्ली में मेट्रो से चलते, तो उसको स्मार्त पत्रम बोलते हैं, स्मृति पत्रम, नए शब्द बनाते हैं। तो डबल डेकर बस है, द्वितलीयम बसयानम, सीसीटीवी कैमरा है, निगूढ़ परिधि छायांक कहा, इस तरह थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन अर्थ वही जो है, श्रुति मधुर भी हो, सरल हो, प्रयास ये है। लेकिन संस्कृत अधुनातन भाषा है। देखिए आगे आप, ये संधि है केवल देखने के लिए, इसमें अण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि ये है, इसके सूत्र है जिनको सामान्य जानते हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़े हैं, और किस तरह से इसमें हल संधि, अच संधि, ये संक्षेप में यण संधि का भेद और सूत्र मैंने दे दिया है। उसके बाद यण संधि में उदाहरण वगैरह दिया है। दीर्घ संधि कैसे होती है, गुजराती में रमेश, रमा, ईश, रमेश, इस तरह से ये सारा। और गुण संधि, इसमें विस्तार, अयादि संधि, दशगण, वादी वगैरह। तो ये इसके बाद और विस्तार है जिसमें मैं नहीं अभी जा रहा हूं, विषय पर आ रहा हूं, भाषा और बोली। बोली अंग्रेजी में आप डायलेक्ट या कोलोक्वियल लैंग्वेज बोलते हैं, हम बोली बोलते हैं, और उसी को भाषा, भाष व्यक्तायाम वाची, जो व्यक्तवा, क्योंकि अव्यक्त वाणी परापश्यंती मध्यमा तक मानी जाती है, लेकिन व्यक्त वैखरी मानी जाती है। और विखर शब्द ख, खम, आकाशम, राति, व्यापनोति, आकाश शब्द गुणकम, आकाशम, तो खर और विशेषेण आकाशे व्यापनोति, वैखरी, विखरी, वैखरी। तो ये वैखरी वाणी जो मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, वो तो है ही है व्यक्तायाम वाची। लेकिन बोलचाल की जब भाषा होती है, इसको हम बोली कहते हैं, वो भाषा है। और इसीलिए पाणिनि सूत्र भी है, वेदे लोके च, वेद में और लोक में हम अनेक बोलियां, नागालैंड में जहां लिपि नहीं है लेकिन 19 या 22 बोलियां हैं उनकी, नागालैंड की, तो छोटा सा राज्य है। तो इसी तरह गुजराती, काठियावाड़ी, कच्छी, चरोतरी,
ये बोलियां है हमारी। इसी तरह हरियाणा में प्रत्येक 4 कोस पे बानी, 8 कोस पे पानी, जो भी कहावत है उस तरह। तो ये लहजा बदलता है, लेकिन मूल उसका संस्कृत है, मूल संस्कृत है। कैसे? इसलिए संस्कृत को ध्वनि विज्ञान मैंने आपके सामने रखा, साइंस ऑफ साउंड। आप कथा में कहते हैं, आभना थांभला रोज उभा रहे, वायुनो विंजणो रोज हाले, उदयने अस्तना दोरड़ा पर रविराज माले। પછી ભાગતી ભાગતી પડી જતી રાત નવ સૂર્યને હાથ આવે, એ કર્મવાદી બધા કર્મ करता रहे, एहने ऊँघवू केम फावे। बापू आपका ये सुन के संस्कृत के संस्कार को, इसमें 90% शब्द संस्कृत के हैं। आभ आकाश, थांबला स्तंभ, थंब स्थांभलो, आभना आंबला रोज, उर्दू और फारसी का भी प्रभाव है, गुजराती में तो आप जानते हैं। उभा उत्तंभनम, उभा रहे। वायु, वायु संस्कृत शब्द है। व्यंजनो व्यंजनम, रोज उर्दू शब्द। हाले हलती हालती, दोनों क्रिया है चौधरी साहब, हाले चलता है। पक्षी उदय ने अस्त, दोनों संस्कृत शब्द। दोरड़ू, ये इस पे मुझे अभी नहीं मिला है इसकी ध्वनि फोनेटिक्स के किससे ये दोरड़ा बनेगा, लेकिन रविराज सूर्य। महाले महालते, संस्कृत धातु है बापू, महालते। और पक्षी पश्चात, भागती भागती, भज्यते भज्यते, पड़ी जती पतंती पतंती, रात्रि नव सूर्य ने हाथ आवे, हाथ हस्त आवे आगच्छति, रात नव, ये कर्मवादी बधा कर्म करता रहे, कुर्वंती सर्वे, एहने तेषाम या तेभ्य, ऊँघवू नींद, निद्रा से कहीं न कहीं ध्वनि विपर्य ध्वनि साम्य से, केम फावे स्फुरति फावे। और कबीर साहिब को मैं यहां याद करूं, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, चलती चलती चाकी चक्रम, चलती चाकी देख के दृष्टवा, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, रोदनम दत्तम रुदितम वा। 2 पाटन के बीच में, द्वे 2 पाटन, पट्टह पट्ट पट्टह उभयलिंगी, पट्टम पट्टह, 2 पाटन के बीच में मध्य, ये बीच का फिर ध्वनि साम्य देखना होगा। साबित सुरक्षित, बचा न कोई, न कोपी अवशिष्ट सुरक्षित। जी बापू। तो इस तरह से केवल अध्ययन किया जाए प्रत्येक भारत की, और भारत के अलावा और बहुत सारी भाषा, जो ध्वनियां, और उन ध्वनियों से जो स्पष्ट अर्थ निकलते हैं, उस अर्थ को ढूंढने के लिए अभी कल बहुत सारे शब्द, वावड़ शब्द आपने वापरिए, शू वावड़ छे, वार्ता, वृत्तम, वृत्तांतम, उदंतः, वावड़, उतावड़, गौतम भाई से कल बात हो रही थी, उत्तेजनम, उतावड़ शब्द, यानी उसको ढूंढने जाएं तो उसकी मूल धातु वो संस्कृत, और इसीलिए संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, ये सिद्ध होता है। क्योंकि बार बार हम लोग सुनते रहे, बड़े जो भी नेता भाषण देता, वो द संस्कृत इज मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, અને અમારે સમાચાર માટે अनुवाद કરવો પડતો, संस्कृतः सर्वासाम भाषाणाम जननी अस्ति। लेकिन कैसे हैं, वो सिद्ध करने के लिए ये प्रयास किया बापू, और ये सामने आया। और ये देखिए, अम्बा बा, गुजराती में बा बोलते हैं, अम्बा भवती अतीव सुंदरी अस्ति, बा तू सुंदर छो, एवं बा एम के, गुजराती, ये संस्कृत है लेकिन ये गुजराती है। इसी तरह से वो हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा के लिए उठे। ये आजकल संस्कृत में बाबू बहुत लोग काम कर रहे हैं, युवा लोग, जो व्हाट्सएप पर ऐसे बना के भेजते हैं। इस पर 2 दिन की कार्यशाला भी हुई थी 2 साल पहले, पांडे साहब, और उसके बाद पंड्या जी, और उसके बाद छात्रों ने शुरू कर दिया है संस्कृत में, अंग्रेजी में, हिंदी में, गुजराती में तो ये हम बना सकते हैं स्टिकर, लेकिन संस्कृत में शुरू कर दिया है। तौ हस्तौ सदा पवित्रो यौ प्रार्थनाया अपेक्षया सेवाया तत्परो। इसी तरह से अंग्रेजी के छात्र, संस्कृत के छात्र, और नीचे लिखा है बुद्धिर यस्य बलम तस्य। जी जी। एक और बापू मैं आपके सामने प्रमाण, इसलिए कि मीडिया में रहता हूं,
टाइम्स ऑफ इंडिया का है। ये लड़की कलकत्ता की है, 14 साल की है, अन्वेषणा नाम है बापू। और इसने पत्रकारों के सामने, आप इसके पिता और उसका दोनों का फोटो है, पिलानी का ये सारा वृत्तांत दिया हुआ है। इसमें ओम ध्वनि को सुनने से शरीर की क्लांति कैसे और कितनी प्राणवायु का संचार, वो सब डिटेल इसमें दिया हुआ है। रिपोर्ट पूरी दी हुई है कि ओम ध्वनि के अगर हम श्रवण करते हैं तो शरीर में प्राणवायु का संचार ज़्यादा होता है। और इस तरह से पूरी ये रिपोर्ट है। इसके बाद ये दूसरी एक कुछ समय बाद आई थी, वैदिक चांट कैन हेल्प इम्प्रूव टेस्ट स्कोर। माने वैदिक इन मंत्रों के उच्चारण से पर्यावरण शुद्धि भी, और जो भी आपने जैसे अभी कहा कि वैदिक मंत्रों से जिस तरह से अनुभूति होती है पूरे मन, वाणी और चित्त पर, वो सारा विज्ञान सिद्ध कर रहा है ध्वनि विज्ञान के द्वारा। और आपने तो कितना अच्छा कहा, मैं आपसे पूछ रहा था उस डॉक्टर का नाम, के ध्वनि के कारण हड्डियां तक जुड़ सकती है। आज से कोई 40-45 साल पहले बनारस में जब पढ़ता था तो वहाँ BHU के एक सर्जन, वहाँ सुंदरलाल हॉस्पिटल है BHU में, उसने इलस्ट्रेटेड वीकली, खुशवंत सिंह जिसके एडिटर थे, वो उसमें एक लेख निकाला कि सर्जरी, भारत की जो सुश्रुत और ये आयुर्वेद की जितनी सर्जरी के उपकरण है और आधुनिक सर्जरी के उपकरण है, तो हम पुराने उपकरणों में ऐसे बहुत सारे हैं जो अभी तक मॉडर्न सर्जरी के पास वो उपकरण नहीं है। वो आर्टिकल में उन्होंने दिया हुआ इलस्ट्रेटेड वीकली में। तो इस प्रकार से ये सारी जो सूचनाएं हैं, रिपोर्ट, ये सिद्ध करती है कि हमारा ध्वनि विज्ञान जीवन के कितना करीब है और कितना हमारे लिए उपयोगी है। उसके बाद मैंने केवल यही आपको कह रहा था कि शाक्टायन ने ऋक्तंत्र में लिखा व्याकरण का कथन, हम अगर उसको पौराणिक या वैदिक संदर्भ दें तो ब्रह्मा ने बृहस्पति से किया, बृहस्पति ने इंद्र से, इंद्र ने भरद्वाज से, भरद्वाज ने ऋषियों से, और ऋषियों ने ब्राह्मणों को दिया। इतना प्राचीन है, क्योंकि आधुनिक भाषा विज्ञान तो वो ग्रीक, लैटिन, संस्कृत, ऐसे सर विलियम जॉन्स का जो भाषा विज्ञान, उसमें उन्होंने जो दिया वो ठीक है, वो अपनी ओर से उनका। अभी आपने जो बात कर रहे थे, तो पहले तो भेद होता था कि पौर्वात्य और पाश्चात्य, पूर्व माने भारत के विद्वान और पाश्चात्य माने विदेशों के। लेकिन विभूति योग को हम देखें तो कहाँ पूर्व और कहाँ पाश्चात्य, सभी तो भगवान की विभूतियां हैं। वो विद्वान भी तो वही है और नई नई बातें खोजते हैं, इसलिए भेद कहीं नहीं है, केवल हमें उसको जोड़ना है कि कैसे हम उसको समझ सके। तो इस तरह से 73 संहिता का उल्लेख, पहले वाणी अव्याकृत थी देवताओं की प्रार्थना पर, बृहस्पतिश्च वक्ता इंद्रश्च अध्येता दिव्यम वर्ष सहस्त्रम अध्ययन काला अंतम च न जगाम, ये महाभाष्य में दिया हुआ है, ये अनंत महाभाष्य का। इसके बाद महेश, शिव का व्याकरण मिलता है जो समुद्र के समान है। बोपदेव जो व्याकरण के बहुत बड़े आचार्य हैं, उन्होंने ये इंद्रश, चंद्र, काश, कृष्णा, ये 8 इन्होंने बताए हैं। और व्याडी करके थे, उनका व्याकरण गुप्त हो गया है, लुप्त हो गया है। लेकिन ये सुदर्शन देव आचार्य है, 1997 में ये पुस्तक निकली है झज्जर से, गुरुकुल झज्जर से, पाणिनीय अष्टाध्यायी प्रवचन। इसमें उन्होंने 25 व्याकरणों का बापू उल्लेख किया है। 25, पाणिनि से पहले 25 व्याकरण थी, जिसमें उपलब्ध 10 हैं, जिसको आधार मानकर इन्होंने 14 सूत्र के आधार पर अष्टाध्यायी की रचना की है। पाणिनि का संक्षिप्त जीवन परिचय मैंने आपको दे दिया, ये बात आपको पढ़ दी। आधुनिक भाषा विज्ञान, इसलिए मुझे इसके विस्तार में इसलिए नहीं जाना है कि विद्वानों का अपना बुद्धि का कौशल है, खेल है, वो बताते, सन बताते हैं, फिर भेद बताते हैं। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो किशोरीदास वाजपेयी जी के बारे में। इन्होंने तीनों भाषा, ग्रीक, संस्कृत, लैटिन के बीच में सूक्ष्म संबंध सूत्र सर जॉन विलियम्स ने ये कहा, और आधुनिक भाषा विज्ञान के क्षेत्र में ये बात हुई आगे। पाश्चात्य और बहुत अनेक प्रसिद्ध भाषा विज्ञानों ने इस क्षेत्र में बहुत काम किया है। लेकिन अब मैं आपके सामने ये एक है, हो सकता आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, ये नेट पर कोश है, स्पोकन डिक्शनरी, जो संस्कृत भारती वालों ने अपलोड किया है। हम लोगों को अनुवाद में 1974 से जब शुरू हुआ तो बड़ी बड़ी डिक्शनरियाँ, सब आपटे की डिक्शनरी और काणे की, मतलब जो है वो, और ये सारे रखते थे और देखते थे कि इस शब्द का क्या अर्थ है, या लिंग में ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ये देखने के लिए, कंफर्म करने के लिए जहाँ संदेह होता था तो वो देखना। लेकिन इसके आने के बाद
अब इतनी सुविधा हो गई है कि जहाँ भी मुझे, अब मैं मन की बात का संस्कृत में अनुवाद प्रसारण करता हूँ तो नए नए शब्द वो बोलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री बहुत बोलते हैं, सरस्वती की बड़ी कृपा है उन पर, तो वो बोलते हैं तो हमें अनुवाद वो 8 घंटे में 10 घंटे में करके ही देना है, इस तरह की हमारी बाध्यता होती है। तो उस समय हम एकाग्र होकर ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा जो करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये डिक्शनरी हमारी रक्षा करती है। एकदम बीच में जहाँ ये पॉइंटर से मैं आपको बताऊं, ये जगह है, यहाँ मैं अगर लिख दूं एग्जामिनेशन तो परीक्षा शब्द आएगा या उसके पर्यायवाची आएंगे उसके बारे में, या मैं देवनागरी में कुछ लिख दूं इधर, तो वो आगे 3 ऑप्शन है, संस्कृत है, इंग्लिश है, ऑटोमेटिक है, और साइड में फिर बहुत सारे शब्द भी आ जाते हैं। तो नेट पर जो जाते हैं उसका प्रयोग करें तो उनको पता लगेगा कि कितना उपयोगी कार्य हो रहा है। इसके अलावा ये एनिमेशन, कथाएं, लघु कथाएं, जैसे अमर चित्र कथा हम पढ़ते थे, सुनते थे, पंचतंत्र और उसकी बहुत सारी कथाएं, मुझे भी सौभाग्य मिला कुछ कथाओं में अपनी आवाज़ देने का, संस्कृत में, और भाषाओं में भी है, संस्कृत में भी है, और इस तरह से अनेक कथाएं हैं देश विदेश पूरे। और कृष्णा स्टोरी इन संस्कृत, एक त्रिवेंद्रम की कोई कंपनी है जिसने महाभारत के सभी चरित्रों पर 10-10 मिनट के एनिमेशन स्टोरी बनाई है, फिर उसको ध्वनि दिया है, उसका शब्द रूप उसको दिया है। तो संस्कृत में ये सब नेट पर उपलब्ध है, एनिमेशन संस्कृत स्टोरी, और यही उसका लिंक है, इस पर जाके आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। उसके बाद ये संस्कृत कंपनी नेम्स, संस्कृत नेम्स फॉर कंपनीज, संस्कृत नेम्स फॉर बिजनेस, संस्कृत नेम्स फॉर कलर, संस्कृत नेम्स फॉर हाउस रिलेटेड थिंग्स, इस सब डिफरेंट है जो नेट पर, अंतर्जाल पर उपलब्ध है। एक 24 घंटे का रेडियो संस्कृत पे है, आप में से शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन वो नेट पे, अंतर्जाल पे है बापू, और उसका नाम है दिव्यवाणी। www.divyavani.in करेंगे तो आप सुन सकते हैं नेट पर, और उसमें संस्कृत के स्तोत्र, संस्कृत की विद्वानों के इंटरव्यू, साक्षात्कार, नाटक, ये सब प्रोग्राम 8-8 घंटे का। और इसका श्रेय जाता है पांडिचेरी के जो अपना अरविंदो आश्रम है, वहाँ के विद्वान डॉक्टर संपदानंद मिश्र, आप सब संस्कृत के लोग जानते होंगे, उन्होंने शुरू किया, 4 साल हो गया है, 4 साल से ये चल रहा है। और रेडियो ऐसे होने चाहिए। बापू आपके सामने बोलने में मैं मतलब धृष्टता करता हूँ, आप सक्षम हैं, आप संकल्प करेंगे हो जाएगा। टीवी प्रसारण भी होना चाहिए संस्कृत में। अभी तो वार्तावली और दूसरे समाचार वगैरह होते हैं, जैसे आकाशवाणी से हर 15 दिन में एक प्रोग्राम संस्कृत सौरभम करके होता है, पहले आधे घंटे का था, लेकिन अब वो 20-20 मिनट का कर दिया है। लेकिन ऐसे प्रोग्राम बहुत जगह से होता है, लेकिन ये होना चाहिए। उसके बाद वैदिक मैथमेटिक्स पर मैं केवल आऊँगा, 10 मिनट है अभी मेरे पास। वैदिक मैथमेटिक्स मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं आरंभ में पढ़ता था तो गणित मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था, और बाद में भी गणित में मेरी कोई उतनी ज़्यादा रुचि नहीं थी। लेकिन वैदिक मैथमेटिक्स से मेरा परिचय हुआ तो उसका कितना सरल है वो समझाने के लिए एक उदाहरण मैं आपके सामने दे दूँ कि इसमें टेबल जैसे होते हैं आँख, तो उस टेबल में 9 से या 10 से लेकर 99 तक, उस टेबल को करने के लिए हमारा वैदिक गणित कहता है कि 87 है, 87, तो 8 का टेबल चलाइए, 8, 16, 24 ऐसे, और 7 का चलाइए, 14, 21, फिर 16 और 14, तो 16 में 14 का पहला एक मिला दीजिए और उसको जोड़िए तो 174। इसी तरह से ये पूरा टेबल आप देखिए, 8 का टेबल कर लिया, 7 का टेबल कर लिया, उसको जोड़ दिया, 87 का टेबल आ गया पूरा आँख। और इसी तरह से 38 है तो 3 का टेबल चलाया, 3, 6, 9, 12, 15, 8 का चलाया, 16, 24, फिर उसको जोड़ते गए तो 38 का टेबल आ गया। इसी तरह से 92, तो 9 का टेबल किया, 2 का किया, उसको जोड़ते गए और वो 92 का टेबल, 92 का 92, 2, 184, 92 तिया 276, इस तरह से हम सीख सकते हैं। एवं रीत्या वयम दशतः 99 संख्या पर्यंतम अंक सारणिम विनिर्मातुम शक्नुमः प्रसारयन्तु बालान शिक्षयन्तु च एतदस्ति वैदिकम गणितम। केवल मैंने एक झांकी आपको दिया, और बहुत 16 सूत्र में है। हमारे शंकराचार्य जी ने तो इस पर खूब बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है, आप जानते होंगे, वैदिक मैथमेटिक्स पर। अब एक बात और मैं आपके सामने राम की बात मैं कहूँ, मुझे खुद होता है कि कैसा साहस कर रहा हूँ। राम रक्षा स्तोत्र इस तरह से है
मेरे एक मित्र है आनंद वैताल जी, संस्कृत के शिक्षक थे और सेवानिवृत्त हो गए। संस्कृत अकादमी का कार्यक्रम था गौतम भाई, तो बैठे बैठे मुझे उन्होंने कहा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते। मैंने कहा हाँ कभी कभार तो करता ही हूँ। कहते वो राम रक्षा स्तोत्र नहीं है, वो रामायण है। और देखिए बाबू आप कैसा, ये संस्कृत की विशेषता, इस ध्वनि विज्ञान की विशेषता। बुध कौशिक के बारे में थोड़ा विद्वानों में मत है, कोई विश्वामित्र कहते हैं, कोई दूसरे ऋषि बुध कौशिक नाम के हैं, उन्होंने किया है, लेकिन इस तरह से है। इसके 38 श्लोक है और उसमें अंतिम 38वां राम रामेति रामेति, इसके बारे में भी गौतम भाई ने मुझे एक रहस्य बताया, कैसे 1000 संख्या हो जाती है इसमें से ध्वनि से। लेकिन इसमें ये 37 श्लोक है। रामो राजमणि सदा विजयते, रामम, ये संस्कृत के विद्यार्थी जानते हैं, 7 विभक्ति और संबोधन का इसमें संकेत है। लेकिन इसके बाद जब हम चौथे श्लोक में जाते हैं, शिरो में राघव पातु, राघव रघुवंश, भालम दशरथात्मजः, दशरथ के बेटे भाल की रक्षा करे, कौशल्यो दृशो पातु, हमारी आंखों की रक्षा कौशल्यानंदन करे, विश्वामित्र प्रिय श्रुति, मारी कानों की रक्षा विश्वामित्र प्रिय जे राम छे ये करे, घ्राणम पातु मखत्राता, मखत्राता यज्ञ की रक्षा करने वाले भगवान राम मेरे घ्राण की रक्षा करे, नासिका की, मुखम सौमित्री वत्सलाह, लक्ष्मण जे वत्सल छे, जिह्वाम विद्यानिधि पातु, विद्या प्राप्त हो गई उनको विश्वामित्र जी से, कंठम भरत वंदितः, भरत द्वारा आराधित वंदित राम मेरे कंठ की, स्कंधो दिव्य आयुध मिल गए उनको, मेरे स्कंधों की रक्षा करे, भुजौ भग्नेश कारमुकः, सीता परिणय जहाँ शिव धनुष तोड़ा, भग्नेश कारमुकः वो मेरे भुजाओं की रक्षा करे, करो सीतापति, मेरे हाथों की रक्षा, सीतापति हो गए, विवाह हो गया, हृदयम जाम दग्न जित, परशुराम जी को वहाँ उन्होंने जिस तरह से किया है वो रक्षा करे, मध्यम पातु खरध्वंसी, कटी मख का जो ध्वंस करने वाले, खर उसका ध्वंस करने वाले, नाभिम जामवद आश्रय, नाभि का जामवत के जो आश्रय हैं वो करे, सुग्रीवेश कटिम पातु, सुग्रीव ना जो मित्र है वो मारी कमर की रक्षा करे, शक्तिनी हड्डियोनी, हनुमत प्रिया, हनुमान जी, यहाँ शरीर के बल की भी बात आ जाती है, उरुह रघुत्तम, रघुओं में जो उत्तम है ये मारी जांघोनी साथलनी रक्षा करे, रक्षा कुल विनाश कृत, इसमें 2 उन्होंने रघुत्तम रक्षा कुल विनाश के 2 विशेषण दिया है, राक्षस कुल नो नाश करवा वाला, जानुनी सेतुकृत पातु, घुटन सेतुकृत जो राम सेतु बनाया वो, जंघे 10 मुखांतक, जांघों रक्षा 10 मुखांतक करे, पादो विभीषण श्रीदा, मारे पगनी रक्षा विभीषण ने श्री आपा वाला, पातु रामो खिलम वपु, राम है। तो राम रक्षा स्तोत्र रामायण का पाठ है ये कहना। और अंत में मैं बस केवल 2 मिनट में अपना वक्तव्य पूरा करता हूं, एताम राम बलोपेताम, अच्छा उसको मैं वैसे ही आपको बता देता हूं, इसमें रात को बना रहा था, हुआ नहीं है। अ आ ई उ, इस तरह से अगर हम अक्षर लिखे 1 2 3 4 तो 12 होता है स्वर, और इसी तरह से व्यंजन करें क ख ग कुचु टुतु बोलते हैं तो 25 होता है, फिर यारा लाबा श श श ह, इस तरह से हम दें। तो अब आपको मैं केवल होमवर्क के रूप में कह रहा हूं, आप कृष्ण ले क री श अण और उसका जो नंबर है वो मिलाएं तो वो 54 होता है, 54 होता है। और राधिका र आ ध ई क आ इतना ले तो 54 होता है, 54 और 54 108। लेकिन कृष्ण में जो अण में अ है वो इसमें नहीं जुड़ा है क्योंकि वो मेरू है। राम र आ म, इसके जो स्थान है जिस तरह से अंक गणित के हिसाब से ध्वनि के हिसाब से आप जोड़िए तो 54 बनता है। सीता स बड़ी ई त आ, इसको जोड़िए 54 बनता है, 54 और 54 108। और म में अ है वो मेरू है, सीताराम 108। और ये मुझे परसों अहमदाबाद में बैठा था, वडील गौतम भाई ने बताया, पुस्तक दी संस्कृत वांग्मय में श्री कृष्ण, उनकी संपादित वसंत भाई परीख द्वारा संपादित, मुख्य संपादक है स्वामी गंगेश्वरानंद जी महाराज ने, बापू उसमें अंतिम पृष्ठ पे उन्होंने दिया है, ये खोज की है, मैं तो केवल आप तक पहुंचा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगता बापू आपके पास आना। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।
ખૂબ ખૂબ આભાર બલદેવાનંદભાઈ. અને એક મુનિત્રયમ નમસ્કૃત્ય એમ એમણે 3 મુનિઓનો ઉલ્લેખ કર્યો એ પ્રમાણે વિજ્ઞાનમાં એક ત્રીજા મુનિનો ઉલ્લેખ મારે રહી જાય છે. ન્યૂટનનો મેં ઉલ્લેખ કર્યો, આઇન્સ્ટાઈનનો ઉલ્લેખ કર્યો, અને ત્રીજા સ્ટીફન હોકિંગ એ ત્રીજા મુનિ છે, સ્ટીફન હોકિન્સ. હવે એમણે શું કર્યું છે કે બિગ બેંગ થિયરી, કે જ્યારે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ, સૃષ્ટિ એટલે કઈ? આપણી સૃષ્ટિ. યુનિવર્સ, મલ્ટીવર્સિસ, દેર આર મેની યુનિવર્સિસ, ઘણા વિશ્વો છે. એમાં જે અત્યારે આપણું જે વિશ્વ છે, આપણી નિહારિકાનું જે સૂર્યમંડળ છે, એ સૂર્યમંડળનું જે વિશ્વ છે, એ વિશ્વની જ્યારે ઉત્પત્તિ થઈ ત્યારે, આ તો આવું મેં વાંચ્યું છે સાહેબ, હું તે વખતે હાજર તો નહોતો પણ મેં વાંચ્યું છે અને જાણું છું કે જ્યારે બિગ બેંગ એ થિયરી છે આખી વૈજ્ઞાનિકોની, બિગ બેંગ, મોટા ધડાકા સાથે વિશ્વ ઉત્પન્ન થયું, તે વખતે ઓમ શબ્દ પ્રગટે છે, ઓમ ધ્વનિ આવે છે. તે વખતે ઓમ આખા વિશ્વમાં એ અવાજ વ્યાપે છે. આવું એક બહુ સ્ટ્રોંગ થિયરી ચાલી રહી છે અને મને માનવા જેવી લાગે છે. હું જો કદાચ તમે કહેશો કે આ સભામાં સૌથી વધુ શંકાશીલ હું હોઈશ એવું મને લાગે, પણ આ જે વાત છે એ મને માનવા જેવી લાગે છે કે ઓમની. એટલે અને એક છેલ્લી બ્લૂમફિલ્ડ નામનો એક મોટો વિદ્વાન થઈ ગયો સંસ્કૃત ભાષાનો, ભાષા વિજ્ઞાની. અને સંસ્કૃત, અત્યારનું જે ભાષા વિજ્ઞાન છે બધું સંસ્કૃતના આધારે છે, ખાસ કરીને વૈદિક સંસ્કૃતના આધારે, ક્લાસિકલ સંસ્કૃત નહીં, વૈદિક સંસ્કૃતના આધારે અત્યારનું જે કંઈ ભાષા વિજ્ઞાન ચાલે છે. એ બ્લૂમફિલ્ડે, ચૌધરી સાહેબ, બ્લૂમફિલ્ડે એવું કહેલું કે પાણીનું વ્યાકરણ ઇટ ઇઝ ધ ગ્રેટેસ્ટ મોન્યુમેન્ટ, સૌથી વધુ મોટામાં મોટું સ્મારક પાણીનું વ્યાકરણ, જેના વિશે બલદેવાનંદ સાગર કહ્યું. તો પાણીનું વ્યાકરણ ઇટ ઇઝ ધ ગ્રેટેસ્ટ મોન્યુમેન્ટ ટુ ધ હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ, માનવીય બુદ્ધિનું સૌથી મોટું સ્મારક એ પાણીનું વ્યાકરણ છે. એ વાત સાથે મને આજે તક મળી આપ સૌ સાથે થોડી વાત કરવાની. આ ત્રણેય વિદ્વાન મિત્રોનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ખૂબ સરસ રીતે એમણે એમના વક્તવ્યો અહીંયા પ્રસ્તુત કર્યા. એક નવો વિષય આવ્યો છે, થોડું કન્ફ્યુઝન પણ છે, એ બધા ઘણા પ્રશ્નો પણ ઉઠે છે. બાપુની સભામાં આ બધું જ થઈ શકે અને બાપુના દરબારમાં આ બધું થઈ શકે, એટલે એમાં મને કોઈ સંકોચ નથી કે મને કન્ફ્યુઝન પણ છે, મને એ પણ છે. પણ ખૂબ ખૂબ આભાર આપ સૌનો.